startups, entrepreneurship, starting your own new business. Join me every week as we dive into stories, topics, and advices from the top founders, innovators, the crazy ones, the misfits, the troublemakers. Every Saturday at 4 p.m. I'll see you there. हमारे लोग जो हैं वो गाइडेंस नहीं मांगते किसी से, वो शर्माते हैं कि किसी से मैं पूछूंगा तो मैं कमतर फील होऊंगा, बीच में टांग अड़ा दूंगा किसी की बात में, लेकिन आई वोंट एक्सेप्ट कि आई डोंट नो समथिंग। इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसमें ये है कि प्रैक्टिकलिटी मिसिंग है. वट एवर वी आर डूइंग वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन द डाटा सिस्टम. गाइडेंस और मेंटोरशिप लेना बहुत ज़रूरी है. अब पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं, बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट्स आ गए हैं जो कि काउंसलिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं. गूगल आपका बेस्ट टीचर है. यू डोंट नीड एनीवन जिससे आप जाके जो है वो गाइडेंस लें. पाकिस्तान में बहुत मुश्किल होती है कि एक खातून के अंदर या एक मर्द के अंदर भी हिम्मत देखना कि इतना सब कुछ करे और यकीन हो कि जी मैं तो कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ. वो मोटिवेशन कहाँ से आती है? मोटिवेशन आपको तब आती है व्हेन यू हैव ड्रीम इन फ्रंट ऑफ यू. जब आपका माइंड बड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है उस चीज़ को अचीव करने के लिए, गोल्स को लिखना बहुत ज़रूरी है और उस तरह से वो जो लिखे हुए गोल्स होते हैं ना, वही आपकी मोटिवेशन बन जाते हैं बाद में. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साद अल्लाह वाला है एंड वी बैक विद अनदर पॉडकास्ट इन अ वेरी डिफरेंट लोकेशन. वी आर नॉट इन कराची एनीमोर, वी नॉट इन आवर यूजुअल स्टूडियो, वी इन लाहौर. इफ़रा बाजी काफ़ी टाइम से इंसिस्ट कर रही थी कि वो हमारे पॉडकास्ट पे आएंगी. मैंने इंसिस्ट करा था आप आए, लेकिन बस देखिए आई हैव टू से समथिंग नाइस अबाउट माय पॉडकास्ट ना, लेकिन बस उन्होंने इतनी उनकी जिद मेरी जिद के साथ हम पॉडकास्ट पूरा सेट उठा के लाहौर आ गए. सो इन लाहौर. So Ifra Baji is with us and she's gonna introduce herself the best way, because I'm getting things wrong because there's too much analogy and too much technicalities to terms now. So but Ifra Baji is very special to us and to our podcast, to me, because she also traveled with us on the Impact Summit, which was in Turkey. और उन्होंने काफ़ी मतलब मेरी हेल्प भी करी. शी वॉज पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इवन दो, बट ऑल्सो शी आई थिंक I mean, I try to deliver the most of my the most value I could, but she was the biggest cheerleader of the whole program. I'm very thankful to her for joining first of all, and then for being so supportive for the whole program. Thank you So so much, shukriya Ifra Baji. If you could introduce yourself the best way now, and then we can carry on from there. For sure. So basically, Saad, if I'll talk about my current journey or the journey from where I started. So currently I'm working at, like you can say that, two organizations. One is Rosie.pk and the other one is nearpeer.org. So at Rosie, I'm performing the roles of performance marketing manager, and at Nearpeer, I am basically heading the marketing domain. So this is the brief introduction about me. And उसके अलावा जो है I've been like associated with another brand जहाँ पर I used to teach, and that teaching is obviously associated with digital marketing as well. I am teaching at Ideoversity on the weekends. What's Ideoversity? Ideoversity is basically that is an organization which provides online skills. Along with that, the physical startup is also available there. So yeah, this is all about Awesome. it. You're doing a lot at a very young age, and you're also a female, because you told me about starting your own startup as well. Yeah. So you're a female founder now as well. I want to know where it all started. कि मतलब कहाँ से लगा रखा कि टेक की फील्ड में जाना है, एंड देन ये सब चीज़ें, क्योंकि मार्केटिंग आपने पढ़ी, क्या किया, आपने कहाँ से हैं, थोड़ा बहुत अपने बारे में बताएं. Sure. आई थिंक मेरा जो जर्नी है वो काफ़ी लाइक डाइवर्ट हुआ है. काफ़ी डिफरेंट फैक्टर्स को मैंने एक्सप्लोर किया है, डिफरेंट फील्ड्स को मैंने एक्सप्लोर किया है. तो इफ़ आई टॉक अबाउट माय इनिशियल डेज, तो आई स्टार्टेड माय बेसिकली करियर बैक इन 2018, and in the capacity of a graphic designer, क्योंकि I was in my MPhil, और I tried to get my job
with my degree जो कि मैं total quality management में कर रही थी with the major of marketing, but obviously I was just founding the job. I was just like looking for the job in that particular domain, and I actually got surprised कि 18 साल की education के बाद जब मैंने जाके सफायर में लोगों को काम करते हुए देखा तो आई वाज जस्ट लाइक कि यार नो, दिस इज नॉट अ जॉब आई वांट टू डू, कि इतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ बैठे हुए हैं, इतने ज़्यादा वर्कर्स हैं, एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जो कि उस करियर को परस्यू करते हैं उनके साथ, लेकिन माय प्रेफरेंस वाज नॉट दैट। तो मैंने कहा कि नहीं, अभी मुझे कुछ चेंज करना है। तो आई थिंक दिस हाईलाइट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि हम लोग काफ़ी लोग जो हैं वो इग्नोर कर देते हैं, कि वी शुड लुक इनटू द फील्ड अल्टीमेटली, कि कहाँ पर कौन सी ऐसी जॉब्स होंगी जो कि जाके हम लोग बाद में कर रहे होंगे परस्यू। तो तब मैंने एक्सप्लोर किया एंड आई आई वाज लाइक कि नहीं, मुझे मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव में ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। मगर ये कैसे पता चला कि मार्केटिंग की फील्ड होती भी है? अच्छा, इसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्टर था, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी अवेयरनेस नहीं थी मुझे उस पॉइंट ऑफ टाइम में, और इतना ज़्यादा मैं डिजिटली इनेबल भी नहीं दिस इज थी। बैक इन 2018। 2018। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में मैंने ये देखा कि ठीक है, फिर अपने इंस्ट्रक्टर से होता है ना कि जाके अपने इंस्ट्रक्टर से पूछते हैं कि अच्छा कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जिनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिनको परस्यू कर सकते हैं। एवरीवन सेड कि यार इफ्रा, बेस्ड ऑन योर पर्सनालिटी यू शुड गो टू द मार्केटिंग, मार्केटिंग इज गोइंग टू बी अ नाइस फील्ड फॉर यू। और फिर वो उसी तरह से मैंने बस उसको फॉलो किया, और आज भी मुझे याद है सर ज़िया, ही इज़ एक्चुअली टीचिंग एट पंजाब यूनिवर्सिटी, ही इज़ अ वेरी अमेजिंग इंस्ट्रक्टर। तो उन्होंने बेसिकली ये हेड स्टार्ट दिया था, और इस हेड स्टार्ट के बाद मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि अच्छा ठीक है, दिस इज़ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ जॉब्स जो कि अवेलेबल नहीं है मार्केट में, या जो अवेलेबल हैं वो मेरे इंटरेस्ट की नहीं है। तो अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं मुझे अपना करियर स्विच करना है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम जब मैं अपना एमफिल कर रही थी। तो अवेयरनेस आई थिंक अपने करियर से रिलेटेड बहुत ज़रूरी होती है व्हेन एवर यू आर गोइंग इनटू अ पर्टिकुलर फील्ड। जो बच्चे अब इस उम्र में आके गैप ईयर्स ले रहे होते हैं ना अपनी एजुकेशन में, आई एक्चुअली रिस्पेक्ट दैट थिंग, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू एक्सप्लोर योरसेल्फ। अदरवाइज बस आप एक सीधी लाइक रेस में लगे होते हैं, और एंड पॉइंट पे जाके आपको पता चलता है कि नहीं नहीं यार, दिस इज नॉट द डेस्टिनेशन आई वुड रियली लाइक टू गो विद। तो बट आई हैव अ काउंटर क्वेश्चन इन बिटवीन। तो या श्योर। आपने कहा आपको एक मेंटर मिले, आपके टीचर मिले जिन्होंने आपको गाइड किया। एक गाइडेंस सिस्टम काफ़ी मिसिंग है हमारी सोसाइटी में, अगर आजकल देखा जाए कि लोग डिग्री तो ज़रूर ले रहे हैं, गैप ईयर भी ज़रूर ले लेते हैं, बट नोइंग व्हाट अपॉर्चुनिटीज दे रियली आर, कभी कभी लिंक्डइन नहीं खोलते, या उनको ये भी नहीं पता होता लिंक्डइन कुछ है, या वो कभी फेसबुक पे सर्च भी नहीं करते कि हाउ कैन आई गेट अ हायर पेइंग जॉब, या गूगल पे सर्च नहीं करते क्योंकि गूगल इज ऑल नोइंग नाउ। आई मीन इट नोज एवरीथिंग दैट देयर इज। व्हाट डू यू थिंक इज मिसिंग के हमारे लोग जो हैं वो गाइडेंस नहीं मांगते किसी से, वो शर्माते हैं कि किसी से मैं पूछूंगा तो मुझे मैं कमतर फील होऊंगा, या मुझे मतलब लोगों को एक शर्म आती है ना कि मैं बीच में टांग अड़ा दूंगा किसी की बात में, लेकिन आई वॉन्ट एक्सेप्ट कि आई डोंट नो समथिंग। या ऑफ कोर्स। और आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसमें ये है कि प्रैक्टिकलिटी मिसिंग है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, कि हम लोग प्रैक्टिकली चीज़ें नहीं कर रहे होते। चीज़ें वट एवर वी आर डूइंग, वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन द रटा सिस्टम, एंड दैट रटा सिस्टम इज़ बेसिकली like building us into someone who is not aware of the reality, but someone who actually knows about the theory, और वो थेरी के बेस के ऊपर जो है बस वो बातें करते हैं, और थेरी के बेस के ऊपर बस वो उन चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं। तो दिस इज़ व्हाट आई फील। और अवेयरनेस ना होने का, या मतलब अवेयरनेस वो गाइडेंस कहाँ से ले अब वो गाइडेंस का सबसे अच्छा सोर्स जो है आई फील लाइक इज़ गूगल। बिल्कुल। या एंड दिस इज व्हाट आई फील, एंड आई फील लाइक कि गूगल आपका बेस्ट टीचर है। यू डोंट नीड एनीवन जिससे आप जाके जो हैं वो गाइडेंस लें, बहुत प्रॉपरली पूछें। ऑल्दो अब पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं, बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट्स आ गए हैं जो कि काउंसलिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं, करियर काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, और उन करियर काउंसलिंग में आपको कुछ सेल करने की नहीं कोशिश करते, लेकिन दे आर जस्ट लाइक गाइडिंग जो यू होते हैं ये ऑन वाले योर। जो पैसे बनाने के चक्कर में नहीं होते ज़्यादा। Yes, I have observed a few startups and I actually admire their work. आई मीन अगर आप थोड़ा सा किसी के बारे में बता दें, आई मीन आई एम नॉट सेइंग किसी का प्लग इन डालें, लेकिन हाँ हाँ। इट्स एक्चुअली वेरी Even if I एनलाइटनिंग, talk मैं about मुझे पता। नियर पियर as well, तो नियर पियर में भी हमारे पास जो है एक सेट ऑफ काउंसलर्स हैं who are just providing the counselings
वो कोई अपसेल नहीं कर रहे, चीज़ें कुछ ऐसी नहीं प्रोवाइड कर रहे कि हाँ भाई सही है, अब आप आए हैं तो अब हम लोग आपको कुछ प्रोवाइड ही करेंगे, कुछ सेल ही करना है। वो क्लियरली आपको बताते हैं कि योर सोल्यूशन कैन बी एट नियर पीयर, इट कैन नॉट बी एट नियर पीयर। आपको बस आपकी जो पैशन है, आपका जो राइट पाथ है, उसको आइडेंटिफाई करने में आपकी हेल्प करेंगे। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन ऐड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो या दैट्स हाउ आई फिगर्ड आउट कि मुझे मार्केटिंग ज्वाइन करनी है और मार्केटिंग को लेके चलना है। बट येस, आई एक्नॉलेज दिस पॉइंट कि गाइडेंस और मेंटोरशिप लेना बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ मेंटोर। तो इफ्राबादी, कमिंग बैक टू योर जर्नी, आपने पहले तो बताया ना आपने कहाँ से स्कूलिंग करी, कहाँ से यूनिवर्सिटी गई, वो तो आपने बताया नहीं। ओके। सो स्कूल मेरा कोई ब्रांडेड स्कूल नहीं था। मैंने वहीं पर ही हमारी अपनी विसिनिटी में एक स्कूल था जहाँ से मैंने स्टार्ट किया, और एंड यू आर बड़ी फ्रॉम लाहौर? हम्बल, या आई एम फ्रॉम लाहौर, ओके। और बड़ा हम्बल सा स्कूल था जहाँ से मैंने स्टार्ट किया। और स्कूल की जब मैं बात करूँ या एजुकेशन की जब मैं बात करूँ ना, तो साथ देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड रियली लाइक टू टेल। और इस चीज़ के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा बात नहीं की है, और आई डोंट थिंक सो कि मैंने इससे पहले कभी भी इस चीज़ के ऊपर बात की है। आई वाज लाइक लिटिल बिट अफेक्टेड बाय डिसलेक्सिया। सो डिसलेक्सिया क्या, जो वो एक एलिमेंट था ना मुझ में, और हैविंग दैट काइंड ऑफ स्कूल वाज लाइक अ कॉम्बिनेशन फॉर मी, कि वो चीज़ को फिगर आउट करना कि एक स्टूडेंट या एक जो क्लासमेट है वो किस तरह से उसको प्रोसीड कर रहा है, हाउ आई एम प्रोसीडिंग दैट, एंड विद द डिसलेक्सिया आई हैव बीन अ टॉपर एट दैट पर्टिकुलर स्कूल एज वेल। सो ये एक जो था जर्नी का मेरा स्टार्ट था, विच वाज ऑब्वियसली चैलेंजिंग फॉर मी, क्योंकि एज अ किड when you are like actually observing such things और आपके पास कोई support नहीं होती ना, it's very difficult। तो whoever is listening to me, और अगर किसी का भी कोई टीचिंग में एक्सपीरियंस है और जो इस पर्टिकुलर फील्ड में जो है वो अपनी वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, तो द ओनली थिंग आई कुड से कि उन जो ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं, इवन माइल्डली भी कोई इफेक्ट होता है तो दैट इज गोइंग टू इफेक्ट दैट पर्सनस लाइक एजुकेशनल पाथ, राइट। और दैट्स द वन मेन रीजन कि आई कुड नॉट पुल ऑफ माई एमडी कैट। और एमडी कैट मैं नहीं कर सकी थी, एमडी क्योंकि कैट क्या होता है? एमडी कैट बेसिकली जो है वो सॉरी, मैं मेडिकल। पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मुझे ना डिसलेक्सिया भी मैं आपसे पूछने वाला हूँ होता क्या है, मुझे नहीं पता। अच्छा, अच्छा। तो इसमें नहीं, और कुछ नहीं होता, इट्स जस्ट कि आपकी जो रीडिंग की जो एबिलिटी होती है वो उतनी हार्नेस नहीं ओह होती या यस, उतनी ओके, नाउ आई अमेजिंग नहीं रिमेंबर। होती जितनी एक नॉर्मल बच्चे की होती है। तो जब भी स्कूल में बच्चे रीड करते थे ना, और वो ब्राइट स्टूडेंट होते हैं, तो हमेशा टीचर आपको कहती हैं कि आप रीड करें। तो ये चैलेंज आता था मुझ पे हमेशा, एंड आई ऑलवेज यूज टू गेट सरप्राइज विद द पीपल कि यार ये भी तो मेरे साथ पहली दफ़ा ये पैराग्राफ को रीड कर रहा है, तो ये पर्सन इतना फ्लुएंट कैसे है इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में। तो दैट वाज अ वेरी बिग चैलेंज फॉर मी, और उसको मैंने इस तरह से ओवरकम किया है कि क्योंकि अगर वंस दिस इज विद यू, तो ये आपके साथ रहता है लाइफ टाइम, ठीक है, ख़त्म नहीं होता। तो इसको आप ओवर लाइक मैंने ये अपने लिए सोल्यूशन किया है, whoever wants to look into this particular solution, I think you should focus less on spellings, क्योंकि जब आप कम उस पर फोकस करते हैं ना, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में आप ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस कर सकते हैं, और उस पॉइंट ऑफ टाइम में आपके स्पेलिंग्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली परफेक्ट होने शुरू हो जाते हैं, बिकॉज यू राइट अलॉट। तो ये जो है मेरे लिए स्ट्रैटेजी मुझे हेल्प किया था इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में। और अगर एक नॉर्मल जो था वो उस सब्जेक्ट को पढ़ने में एक नॉर्मल बच्चे को मैं कहती हूँ कि तकरीबन 4 आवर्स 5 आवर्स लगते थे, तो मुझे वो मेरा माइंड बना होता था कि अच्छा ठीक है, मुझे जो है ये इसमें इतना टाइम लगना है, एंड आई विल बी विलिंग टू इन्वेस्ट दैट टाइम। तो दैट वाज द मेन थिंग कि जो मैंने जिसके साथ मैंने अपना एजुकेशनल करियर स्टार्ट किया। फिर उसके बाद जैसे ही अब मैंने ये स्ट्रैटेजी जो है वो अपने लिए निकाल ली, मैंने कहा चलो चलो ठीक है, ये एक पर्टिकुलर चीज़ है, लेकिन इसका जो वे फॉरवर्ड है वो ये है। उसके बाद मैंने मेडिकल प्री मेडिकल रखा। प्री मेडिकल में यही शौक था कि बस सही है, घर में सबने कहा है तो हमने मेडिकल डॉक्टर बनना है। अच्छा। आई वाज इन दैट पैराडाइम एज वेल कि बच्चियाँ जो हैं वो डॉक्टर बनती हुई अच्छी लगती हैं। तो मैंने कहा चलें ठीक है। फिर मेडिकल में जैसे ही मैं गई, फिर उसके एंट्री टेस्ट में ऑब्वियस सी बात है कि डिसलेक्सिया वाज समथिंग कि जो कि मुझे वहाँ पर इफ़ेक्ट कर रहा था। तो मैंने कहा कि ये चीज़ प्रॉपर्ली होगी नहीं, तो मेरा उस तरह से मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ। तो फिर मैंने एमडी कैट को यानी मेडिकल की फ़ील्ड से स्विच कर लिया एक बिज़नेस की फ़ील्ड में। अब मैं बीएस में आ गई, हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स में मैंने वहाँ पर एडमिशन ले लिया, और वहाँ से मैंने अपनी कौन करियर सा को कॉलेज? हेले college. It's basically
इन कायदे आज़म कैंपस ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। ओके। तो वो बेसिकली कॉमर्स से रिलेटेड है सारा। तो वहाँ से बस मैंने अच्छा, स्टार्ट मैं किया। कराची वाला हूँ तो मुझे यहाँ की ज़ोन का पता नहीं है। हाँ, तो वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया और उसके बाद जो था बिज़नेस की फ़ील्ड वाज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग टू मी, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप के जितने भी आइडियाज़ थे, मार्केटिंग से रिलेटेड जितने आइडियाज़ थे, तो वो काफ़ी अच्छा जर्नी था वहाँ पर उन चीज़ों को लर्न करना। और नया-नया बच्चा जब यूनिवर्सिटी में जाता है तो वो ऑब्वियसली दैट्स अ न्यू एक्सपीरियंस एज़ वेल। तो उसके बाद लास्टली मैंने अपना एमफिल भी परस्यू किया और एमफिल था मेरा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में। एमफिल के साथ-साथ ही तो वो मैंने कहाँ से किया? वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी से किया था। एमफिल के साथ-साथ ही मैंने जो था अ, जॉब स्टार्ट कर दी थी। जॉब मेरी बेसिकली सबसे पहली मेरी जॉब थी खुद ऑर्गेनाइज़ेशन में। खुद बेसिकली एक एनजीओ है, बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइज़ेशन है। उनका जो कोर आइडिया है ना, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, उसमें ये है कि दे प्रोवाइड और दे टीच डिजिटल स्किल्स टू अंडर प्रिविलेज एरिया स्टूडेंट्स। और उनको वो लाइक गाइड करते हैं कि हाउ दे कैन अर्न इवन एट दैट एज और इवन विद दैट काइंड ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो ये ऑर्गेनाइजेशन थी। और जो मेरा पहला स्टार्टअप छोटा-सा था, वो भी मैंने उसी के थ्रू जो था उसको किक ऑफ किया था। उसकी भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो इफ यू बताएँ, वांट टू मुझे सुनने के लिए बैठा हूँ। स्टोरीज़, हाँ, बिल्कुल, वो व्हाई स्टार्टअप आपने नॉट? बोला वो फिर ज़रूरी है। हाँ, बिल्कुल। तो बिज़नेस स्टूडेंट थी, स्टार्टअप तो बनता था। और सिंस खुद ऑर्गेनाइज़ेशन इतना मज़े का काम कर रही थी कि मुझे उन बच्चों के साथ एक कनेक्शन आपका बन जाता है ना, कि व्हेन अ स्टूडेंट हू इज़ इन मेबी 7th क्लास और इन द 8th क्लास, और उस पॉइंट ऑफ टाइम में वो बच्चा बैठ के डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा है या ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख रहा है, दैट वाज़ वेरी fascinating फॉर मी। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना फाइवर को यूटिलाइज़ किया जाए, अपवर्क को यूटिलाइज़ किया जाए और बाहर से ऑर्डर्स लेके इन बच्चों को ये स्किल्स यहाँ पे सिखा के इन बच्चों को वो लाइक अमाउंट्स प्रोवाइड की जाएँ जो ये अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में अज़्यूम भी नहीं कर सकते। हुँ। तो ये इस तरह से मैंने इसको हेड स्टार्ट किया। द स्टार्टअप जो अभी मैंने पॉज़ कर दिया है, उसका नाम बेसिकली था ल्यूसिड लर्निंग्स। और लूसिड। ल्यूसिड। और उसके साथ मैंने जो था ये बेसिकली मेन कॉन्सेप्ट यही था कि बाहर से ऑर्डर्स लूँगी, इन बच्चों को डिजिटली इनेबल करूँगी विद द डिफरेंट स्किल्स, एंड आफ्टर इनेबलिंग देम विद द डिफरेंट स्किल्स, हमारी जो लेबर हो जाएगी ना, वो काफ़ी हो जाएगी हमारी इकोनॉमिकल, और उस तरह से हम काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स वहाँ से ले सकते हैं। मोर लाइक गिग इकोनॉमी, राइट? या ओके। सो इट वाज़ जस्ट लाइक अकॉर्डिंग टू दैट लाइक आउटसोर्सिंग के लिए आप चाह रही थी कि एक प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर दें। So स्ट्रीमलाइन that's करना। actually similar to what we're doing in Karachi. It's under Rehan Foundation and Rehan Earning Center. And what we do is we incubate individuals. तो हमारे incubator में basically आप incubate होते हैं. We have a 6 months program where you actually pay us. But if you can't pay, we don't charge. And then we charge after you earn. And we're guaranteeing 100,000 rupees income every month for every single student. सो वी ऑलरेडी हैव 150 स्टूडेंट्स और हम उनके साथ ही काम कर रहे हैं। एंड जो हमारा मॉडल है वो यही है कि एक बंदे को बेसिक कैनवा सिखाना है और बेसिक फाइवर पे वो गिग डालेगा, और जब वो रोज डालेगा उसकी बेस मुन्नी मुन्नी सी ऐसी हो जो आप तो मतलब बड़े लेवल पे करती हैं, वो मुन्नी मुन्नी से करेगा, अपना पोर्टफोलियो बनाएगा, गूगल के ग्रुप्स, फेसबुक ग्रुप्स पे जाएगा, अलग अलग जगहों पे अपने आप को ब्रॉडकास्ट करेगा, बताएगा कि मैं अवेलेबल हूँ, मैं आपके लिए काम के लिए अवेलेबल हूँ। जब उसके पहले आपने कहा ना छोटी सी $3 $4 से कितनी मोटिवेशन आती है, तो वो जब अपने पहले $5 कमाता है बंदा, और जो एक बिलीव उसके अंदर आया था कि सच में आप इंटरनेट के थ्रू पैसे कमा सकते हैं एंड आई कैन अर्न। एंड आई कैन अर्न, तो वो भी 5 10 20, अब हमारे 50,000 ऑलरेडी बंदा कमा रहा है और हमें 5 महीने में स्टार्ट करेगा, अभी तो हमने 1 साल का प्रोग्राम खत्म भी नहीं हुआ। अब हम उनको लेके जा रहे हैं कि वी गेटिंग देयर मेनी एजेंसीज, क्योंकि जैसे ही वो ये कर लेता है वी टेक देम टू स्पेशलाइजेशन। तो आप प्रोफेशनल फोटोशॉप सीखेंगे, प्रोफेशनली वीडियो एडिटिंग सीखेंगे, प्रोफेशनली क्रिएटिव आर्ट सीखेंगे, प्रोफेशनली लोगों की कंटेंट राइटिंग सीखेंगे, इवन इफ इट्स थ्रू ओपन एआई और इवन इफ इट्स थ्रू कैनवा और फिग्मा। बेसिक टूल्स इस्तेमाल करते हुए आप किस तरह किसी कंपनी को फुल एक सोल्यूशन दे सकते हैं फॉर देयर मार्केटिंग और फॉर देयर डेवलपमेंट। हम फुल स्टैक डेवलपर के कोर्सेज भी करा रहे हैं वहाँ पे। इट्स अ वंडरफुल And वंडरफुल कॉन्सेप्ट। इसका होल प्रोसेस का जो मकसद है वो यही है कि हम 1 साल के लिए हम इसको अपना टेस्ट बेड बना रहे हैं। साथ साथ हमने स्कूल भी एक बिल्कुल खोला है जिसमें 150 स्टूडेंट्स हैं, और हर बच्चा का भी यही
एम है कि अगर वो 7th ग्रेड में है और वो 8th ग्रेड में जाना चाहता है और महीने के 50,000 नहीं कमा रहा, तो वो 8th ग्रेड में नहीं जाएगा। तो हमने जो Nice. सक्सेस रेट है, जो लेवल अप रेट है, वो हमने गाइड कर दिया कि जी हम, क्योंकि हमें यकीन है कि एक बंदा के लिए 50,000 कमाना कोई बात ही नहीं है, $200 कमाना कोई बात ही नहीं है। मगर उस टैबू, उस बात को तोड़ने के लिए हमने ये वाली बात रख दी कि अब जब तक आप कमाओगे नहीं, अगली क्लास में नहीं आना। ये अच्छा ग्रेडिंग सिस्टम है। And we've already gotten interest from so many tens and tens of schools. अभी तो टेंस हैं क्योंकि हमने उनको ज़्यादा कोई प्रूफ दिखाया नहीं। जब मकसद ही ये सिर्फ ये है कि अगर ये चीज़ हम प्रॉपरली इसको स्ट्रक्चर करके अभी कर देंगे इंशाल्लाह, तो जो भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं वो ही अडॉप्ट कर लें, क्योंकि वी डोंट वांट टू डू इट आवरसेल्व्स. And that's how we are streamlining this. Because the school earns more, the school starts taking 20,000 rupees fees instead of 5,000, 6,000 rupees. And they're providing a family a livelihood. Yeah. And then Wonderful, when wonderful. that kid's actually earning, it opens up their mind, because now they have ability to do more in their life, and they're more creative, they can do a lot more, and they can support the community more. तो ये Wonderful, हमारा wonderful. थोड़ा सा मॉडल है Very जिस पे nice, हम very काम nice. कर रहे हैं, एंड आप जैसे लोगों की इसमें ज़रूरत होती है कि गाइड करें हमें भी और स्टूडेंट्स को भी, तो उसके लिए मैं आपको इसकी बात तंग करूँगा. बट गेटिंग बैक टू ऑल द अमेजिंग थिंग्स यू आर डूइंग, अशरफा जी, मुझे एक ही सवाल है. हिम्मत पाकिस्तान में बहुत मुश्किल होती है कि एक खातून के अंदर या एक मर्द के अंदर भी हिम्मत देखना कि इतना सब कुछ करे और यकीन हो कि जी मैं तो कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ. वो कहाँ से आई, वो मोटिवेशन कहाँ से आती है? Motivation. I think motivation आपको तब आती है when you have dream in front of you, और ड्रीम वो होता है जो कि आपको पता है कि आपने कंप्लीट करना ही करना है. देयर इज़ नो वे जो कि आपने छोड़ना होता है किसी भी एंगल पर. तो वहाँ से मोटिवेशन आती है जब आपका माइंड बड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है उस चीज़ को अचीव करने के लिए, और आप में एक ड्राइव होती है कि आपने उस चीज़ को लाइक अपना फुल पोटेंशियल देना है और किसी तरह से उस चीज़ को जो है वो आपने अकम्प्लिश करना है. आई थिंक दैट्स हाउ यू गेट मोटिवेटेड, और मोटिवेटेड नहीं, आई थिंक इंस्पायर्ड. दैट्स हाउ यू गेट इंस्पायर्ड, कि वो चीज़ फिर आपके अंदर से आती है और वो आपको कहती है कि नहीं आपने जो है ये पर्टिकुलर चीज़ें परस्यू करनी है. आई थिंक कि अकम्पलिशमेंट का बहुत बड़ा रोल जो मुझे लगता है वो ये होता है कि जब आप अपने गोल सेट करते हैं और उनको लिखते हैं. क्योंकि जब आप गोल्स सेट करते हैं और उसके बाद आप उनको लिखते हैं और उसके बाद आप उनको अचीव करते हैं ना, तो वो आपकी नज़र में आपकी वैल्यू को काफ़ी इंक्रीज़ कर देता है. सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका वहाँ से आता है. फिर आपको पता चलता है कि ठीक है 2019 में अगर मैंने ये किया है तो 2020 में अगर मैं अपने लिए ये प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो मैं ये अचीव कर लूँगा विद दीज पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज. तो आई थिंक गोल्स को लिखना बहुत ज़रूरी है, और उस तरह से वो जो लिखे हुए गोल्स होते हैं ना वही आपकी मोटिवेशन बन जाते हैं बाद में, और दैट्स हाउ यू अचीव इट. बिल्कुल आप सही बात करिए. हम लोग जैसे अपने ऑफिस में भी लोग, जो भी नया बंदा आता है उसको एम्फोसाइज करते हैं कि सबसे पहले हमें बताओ तुम जिंदगी से चाहते क्या, और उस हिसाब से विल पुट यू इन स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, क्योंकि जब तक उसके Wonderful. गोल्स ही सेट नहीं होते, तो अगेन जब हम लोग भी अक्सर बस सुस्ती कर जाते हैं और दिमाग में रखते हैं कि आई वांट टू अचीव दिस इन 2023. अब तो 2023 शुरू हो गया, मगर जब तक आई मीन इवन आई डोंट नो व्हाट आई वांट टू अचीव इन दिस ईयर, तो जब तक मैं लिखूंगा नहीं, दिमाग में होगा, तो वो चीज़ निकल दिमाग में जाती है. लिखने से ना बहुत ज़्यादा दिमाग में अपने वो सारी चीज़ों को लाइक स्केड्यूल करने में ना बहुत ज़्यादा ना कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है. तो इसलिए लिखना वर्क्स फॉर मी. वो चीज़ हमेशा मेरे लिए वर्क करती है. You went to marketing. You now handle all of marketing for Rosie? For Near Peer and for performance marketing domain for Rosie. तो ये परफॉर्मेंस मार्केटिंग में नॉर्मल मार्केटिंग में क्या फ़र्क होता है? परफॉर्मेंस मार्केटिंग में यू बेसिकली मेंटेन योर नंबर्स, और आपकी कंपनी का एक ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री होती है कि फॉर एग्जांपल इस साल में या इस मंथ में हम लोगों ने ये पर्टिकुलर यूजर्स या ये पर्टिकुलर जो है वो रेवेन्यू को टच ऑन करना है. तो यू एक्चुअली हेल्प अचीविंग द कंपनीज दोज पर्टिकुलर नंबर्स. परफॉर्मेंस मार्केटिंग जो है वो उस एंगल में बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस्ड होती है. पाकिस्तान में हम लोग बहुत ज़्यादा ये नहीं देख रहे, लाइक मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि बहुत ज़्यादा कंपनीज जो हैं वो नंबर्स के ऊपर, इससे पहले क्योंकि मेरा जो वर्किंग एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ज़्यादा कंपनीज में रहा है. लाइक हम अगर एक नॉर्मल पर्सन के जो हैं वो हम बात करें 90 के जो
टोटल आवर्स हैं जो कि वो अपनी लाइफ स्पैन में स्पेंड करता है वर्किंग क्लास में, तो आई है थिंक मेरे उससे ज़्यादा ही होंगे मेरे, लाइक आई थिंक इट्स गोइंग टू बी डबल फॉर अभी मी। खुद बता रही थी मैं सैटरडे संडे बिजी हूँ, मैंने काम करना है। क्योंकि आई वर्क अ लॉट, और दैट्स अनदर थिंग कि जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अपबीट रखती है हमेशा, क्योंकि आई लव टू वर्क और काफ़ी इंजॉय करती हूँ मैं इस चीज़ को। तो उससे मुझे इतनी अंडरस्टैंडिंग आई है कि इवन कंपनीज डोंट नो कि व्हाट इज़ देयर नेक्स्ट ईयर्स गोल, व्हाट इज़ देयर नेक्स्ट मंथ्स गोल। और अगर होते भी हैं तो वो बस टॉप मैनेजमेंट तक रहते हैं, वो नीचे अपनी टीम्स में बहुत ज़्यादा इनकलकेट नहीं कर रहे होते कि यार ये आपका टारगेट है, ये आपका टारगेट है। और जब कंपनीज और जब उन आइडियाज़ जिनको आप लाइक बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं ना, व्हेन यू वर्क फॉर दोज आइडियाज़ एंड दोज पीपल आर टेलिंग यू ओके दिस इज़ व्हाट वी वांट टू डू इन द नेक्स्ट ईयर, दिस इज़ व्हाट वी वांट टू अचीव फॉर आवर कंपनी, फॉर द कॉमन गोल दैट वी वांट टू वर्क ऑन। तो आई थिंक वो भी एक आपका मोटिवेशन का सोर्स बन जाता है। तो इस तरह से जितनी भी कंपनीज़ हैं वो अपने एम्प्लॉइज़ को इनेबल कर रही होती हैं विद द नंबर्स, विद द थिंग्स जो कि उनको हेल्प करती हैं अपने बारे में, अपने नेक्स्ट मंथ को प्रोजेक्ट करने में। अलॉन्ग विद दैट वो उनको वो क्रिएटिविटी का क्रिएटिव फ्रीडम जो है वो प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि ठीक है दिस इज़ द टारगेट दैट वी वांट टू अचीव एंड ब्रिंग आउट द स्ट्रैटेजीज़ विद व्हिच यू गोना अचीव इट। तो आई थिंक कि ये एक बड़ी मज़े की अपॉर्चुनिटी या एक बड़ी मज़े की जो है मैंने एक्सपीरियंस देखा है नियर पियर में भी और रोज़ी में भी कि जो ऑर्गेनाइजेशंस इस तरह की हैं वो आपको क्रिएटिव फ्रीडम प्रोवाइड करती हैं। और ये काफ़ी एक अच्छी जो है वो एक रिसोर्स के लिए, और एज अ एम्प्लॉय माइंडसेट इफ़ आई टॉक अबाउट, तो दिस इज़ समथिंग कि जो एक एम्प्लॉय का माइंडसेट होता है कि आई कैन प्रोड्यूस द रिजल्ट्स व्हाट यू वांट मी, and I will exceed your expectations as well, but give me the creative freedom and let me experiment with my ways. ये आपने बड़ी प्यारी बात करी कि क्रिएटिव फ्रीडम एम्प्लॉय को दिया जाए। एम्प्लॉयर्स टेंड टू बी वेरी पोजेसिव और वेरी कंट्रोलिंग, कंट्रोल फ्रीक्स। आपने तो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में खासे काम किया तो उतना नहीं देखा। जैसे a lot of organizations that I've witnessed, थोड़ा बहुत होता है कि जो Sate बॉस होता है, mentality. हाँ, Sate mentality. सेठ मेंटालिटी बिल्कुल Like कह लें, क्योंकि what I हाँ, said you're gonna क्योंकि do that. हाँ, ऐसा है। एंड देन समटाइम्स इवन आई एम लाइक दैट, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग नहीं हुई जाती ना। ट्रेनिंग Hmm. यही होती है कि जी चलो जो कहा है वो चुपचाप वो करो। एंड Hmm. देन तो ये क्रिएटिव फ्रीडम कैसे दिया जाता है? मतलब एक एम्प्लॉयर कैसे अपने एम्प्लॉइज को बिलीव करे कि जी वो कुछ डिफरेंट क्रिएट करके दे देगा इवन दो दे डोंट हैव नंबर्स? आई थिंक साथ जो स्टेप बाय स्टेप जो है ना प्रोसेस होता है, ऑब्वियसली अगर एक पर्सन जो है वो इंटर्नशिप करके आया है, यू कैन नॉट गिव द क्रिएटिव फ्रीडम बहुत ज़्यादा उस पर्सन को। फर्स्ट यू हैव टू ट्रेन योर रिसोर्स, और ट्रेन करने के बाद यानी आपको जब इतनी एबिलिटी, उसकी एबिलिटी के ऊपर एक यकीन आ जाता है और दैट पर्सन इज एक्चुअली शोइंग द रिजल्ट्स कि बस ठीक है जो मैंने इसको टास्क असाइन किया है इस पर्सन ने उसको एग्जैक्टली कॉपी किया है और दैट पर्सन हैज़ एक्सीडेड द एक्सपेक्टेशंस जो मेरी उस टास्क को लेकर थी। तो उसके बाद जब आप देख लेते हैं कि वो पर्सन जो है रिलायबल है, सीरियस है अपने करियर को लेके, रिजल्ट्स प्रोड्यूस करना चाहता है, लव फॉर ब्रांड है उसके दिल में, तो फिर आप जो हैं उस पर्सन को जो है थोड़ा सा क्रिएटिव फ्रीडम देते हैं, क्योंकि ठीक है दिस इज़ योर, इफ़ आई टॉक अबाउट द मार्केटिंग, तो दिस इज़ योर मंथली बजट, ब्रिंग दीज नंबर्स फॉर मी। तो स्टार्ट विद अ स्मॉल बजट, और उसके बाद जो हैं जब आप देखते हो कि हाँ भाई उस पर्सन ने जो है एक दो टास्क ऐसे किए हैं जिसमें मे बी आपके जो नंबर्स थे वो मैचअप नहीं किए, लेकिन एक दो टास्क उसने ऐसे किए विच वर डिफरेंट और उन्होंने अच्छी ट्रैक्शन लेकर आया आपके ब्रांड के लिए, तो देन यू एक्चुअली लेवल अप योर कॉन्फिडेंस लेवल इन दैट पर्टिकुलर रिसोर्स के हाँ दिस इज समवन जिसको मैं अपना एक एसेट बना सकता हूँ कंपनी का। If Baji, you've been in the market for a while, you've been working for 5 years now, Yeah. and you have so much experience. What kind of advices do you think you can give to founders, first of all, who have those say mentalities or who aren't mature enough to have a marketing spend or are unaware of what kind of opportunities there are with marketing? Because you've been in the marketing field for a while. Yeah. तो उस चीज़ में आपकी क्या एडवाइस होगी किसी के लिए? थोड़ा सा मैंने ब्रॉड पूछा है लेकिन आई वांट टू नो योर पर्सपेक्टिव। साथ आई बिलीव इसमें 3 तरह के जो हैं वो हमारे पास प्रोफ़ेशंस आ जाते हैं, या 3 तरह की जो है वो हमारे पास बायर पर्सोनास आ जाते हैं या पर्सनैलिटीज़ आ जाती हैं। सबसे पहले हमारे पास यंग प्रोफ़ेशनल्स होते हैं हू आर एस्पायरिंग टू स्टार्ट देयर स्टार्टअप एंड in anything like this. हाँ, The second part is someone who recently founded a company
और अभी वो यंग एंटरप्रेन्योर्स में आते हैं और दे आर लर्निंग अबाउट द इंक्यूबेशन, एक्सीलरेशन एंड एवरीथिंग लाइक दिस। लास्टली हमारे पास होते हैं जो कि इस्टेब्लिश होते हैं। आई थिंक जो हमारे पास सबसे पहली 2 कैटेगरीज़ होती हैं ना, उन लोगों को सबसे ज़्यादा खुद से चीज़ें लर्न करनी चाहिए, क्योंकि व्हेन यू लर्न यू कैन मैनेज योर टीम एज़ वेल। अगर आपको खुद वो चीज़ें नहीं आती ना, यू कैन हायर अ रिसोर्स, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि हाउ यू कैन इम्प्रोवाइज़ ऑन दैट थिंग, ठीक है? तो फॉर द फर्स्ट लेवल आई बिलीव कि आपको सबसे पहले हर चीज़ को खुद से अंडरस्टैंड करना चाहिए, खुद लर्न करना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ व्हाट आई हैव सीन इन द good entrepreneurs as well. They know almost everything about their companies, different domains. कि उनको मार्केटिंग का भी आइडिया है, उनको सेल्स का भी आइडिया है, उनको ये भी आइडिया है कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट कैसे लानी है, उन्होंने जो है वो लाइक पीपल मैनेजमेंट कैसे करनी है। तो दिस इज़ द वन फैक्टर कि लर्निंग, इवन इफ़ यू आर अ स्टार्टअप फाउंडर और एनीथिंग लाइक दिस, लर्निंग शुड नॉट स्टॉप देयर। और जो सेट मेंटेलिटी वाले कुछ जो हैं वो हमारे होते हैं एंटरप्रेन्योर्स, उनके लिए आई बिलीव के let your team have or enjoy the creative freedom, because your team might surprise you with the results. तो ये एक जो है वो एक रिक्वेस्ट भी है और ये एक सजेशन भी है कि दिस इज़ हाउ योर टीम कैन वर्क एंड मे सरप्राइज यू विद द रिजल्ट्स। तो वो एक फैक्टर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर जाता है। बाकी एडवाइस जो हमारे पास इस पर्टिकुलर एक डोमेन में लोग अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, उन सब से एक यही होती है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की बात करूँ, तो वहाँ पर ID 92 में मैं स्टार्टअप्स को जो है वो मार्केटिंग के ऊपर अक्सर जो है वो ट्रेनिंग सेशंस वगैरह दे रही होती हूँ। तो वहाँ पर आई इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ यंग स्टार्टअप्स और यंग फाउंडर्स। तो उससे आइडिया यही होता है कि दे आर नॉट क्लियर अबाउट द विजन एंड अबाउट the objectives that they want to achieve from the marketing. तो I believe कि हमारे जो young entrepreneurs हैं, उन लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग मिलना इस एक पर्टिकुलर फैक्टर में कि मार्केटिंग को उन्होंने प्रोसीड कैसे करना है अपने स्टार्टअप में, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वो कर सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने नहीं करनी है। क्योंकि अक्सर लोग मुझसे आके ये पूछ रहे होते हैं, अच्छा ठीक है, ये हम लोग की बिल बूट करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, और मार्केटिंग स्पेंड उनका बहुत कम होता है। दैट इज़ नॉट समथिंग कि आई बिलीव के फोकस करना चाहिए हमारे पास यंग स्टार्टअप्स को, क्योंकि डिजिटल इज़ समथिंग जो कि आपको सरप्राइजिंगली इनेबल कर सकता है। आप उससे ज़्यादा लोगों को रीच कर सकते हैं बाय यूजिंग डिजिटल मीन्स, रादर देन आप जो है वो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर फोकस करें व्हेन योर बजट्स आर लेस। तो ये एक चीज़ होती है हमारे पास यंग स्टार्टअप्स की। बाकी ऐसे प्रोफेशनल्स जो कि इस पर्टिकुलर करियर को स्टार्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले इंटर्नशिप्स बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। इंटर्नशिप्स गिव्स यू अ लॉट ऑफ एक्सपोजर, और आपको ये आइडिया होता है, और हर जगह से आप कुछ चीज़ सीखते हैं। लोगों को लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग का एक कोर्स करके ना बस वो अपने साथ ना, वो एक होता है ना, इट्स अ न्यू कूल नाउ डेज के आई एम अ डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर। तो आई थिंक कि ये जो एक पर्सपेक्टिव है ये ठीक नहीं है। एक कोर्स से आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव ज़रूर मिल जाता है, बट ओनली रिलाइंग ऑन द वन कोर्स माइट नॉट हेल्प यू अ लॉट इन योर करियर व्हेन यू आर फोकस्ड ऑन डिजिटल मार्केटिंग। तो ये आपको मल्टीपल, क्योंकि बाय चॉइस यू आर सिलेक्टिंग अ करियर जो कि डायनेमिक है, जो कि चेंज होता रहेगा। तो विद दैट यू नीड टू अपस्किल योर सेल्फ कॉन्टीन्यूसली। तो ये एक बड़ा मज़े का फील्ड होता है डिजिटल मार्केटिंग का। इफ़ यू आर कीन फॉर द लर्निंग, तो दिस इज़ अ परफेक्ट फील्ड फॉर यू, और इसमें अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी होती हैं। That's fantastic, and those are great advices. I Yeah. mean, anyone, she's covered pretty much everyone and everything. कि कोई अगर नया मार्केट में आ रहा है तो वो क्या करे, कोई एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर है या अपना बिजनेस कर रहा है उसको क्या करना चाहिए, एंड if anyone's trying to get any advice or reach out for some questions, how can they approach you, and what's like the homework they should be doing before approaching you? आई बिलीव कि जितने भी हमारे प्रोफेशनल्स हैं जो कि इस पर्टिकुलर स्टूडेंट्स हैं, या जो अभी इस पर्टिकुलर फील्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, न्यू एक्सप्लोरर्स जो जिनको हम कह सकते हैं, फील्ड एक्सप्लोरर्स, वो लिंक्डइन पर ऑब्वियसली दे कैन रीच आउट टू मी, एंड आई थिंक इट वुड बी ऑसम कि अगर आप अपना जो क्वेश्चन है उसको प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड करें, बिकॉज ओनली राइटिंग हाई वॉन्ट डू एनीथिंग गुड।
for your career and thing like this, I think आपको ये लिखना चाहिए कि what is your current portfolio, what is your current education, and why do you want to join this particular field. There is another misconception which I really want to talk about. अक्सर लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग जो है ना वो हर कोई डिजिटल मार्केटियर बन रहा है आजकल. तो लोगों को ना ये बहुत ज़्यादा जो है वो एक मिसकंसेप्शन है डिजिटल मार्केटिंग को लेके कि यार ये फील्ड बड़ी सैचुरेटेड है. तो उन सब लोगों के लिए, उन सब लोगों को मोटिवेट करने के लिए एक चीज़ मैं बताती जाऊँ कि लास्ट ईयर के अगर हम लोग स्टैट्स देखें तो SECP ने ऑलमोस्ट हमारे पास 26,000 कंपनीज़ को न्यू रजिस्टर किया है. और उसके साथ साथ हमारे पास काफ़ी और भी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि ग्रोथ में आ रही हैं. दैट मीन्स कि हमारे, और अगर हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास जो हैं डिजिटल मार्केटिंग की जॉब्स कितनी अवेलेबल थी, तो वो ऑलमोस्ट हमारे पास 35,000 जॉब्स अवेलेबल थी. तो कहाँ पर सेचुरेशन है? इसमें कोई सेचुरेशन नहीं है. और कंपनी एक्चुअली वांट कि कोई ऐसे रिसोर्स हों जो कि हमारी डिजिटल मार्केटिंग को अच्छे तरीके से प्रोसीड कर सकें. वही एक जो आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि फाउंडर बनना इज़ अ न्यू कूल थिंग. आई थिंक द सेम इज़ हैपनिंग विद डिजिटल मार्केटिंग एज वेल. अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं जिस तरह से फाउंडिंग अ कंपनी इज़ अ प्रॉपर लाइफ स्टाइल, तो आई थिंक डिजिटल मार्केटिंग भी एक प्रॉपर लाइफ स्टाइल है जिसमें आपने अपने इस एक पर्टिकुलर लर्निंग जर्नी के साथ कमिट करना है. एंड योर जर्नी इज़ योर मेन डेस्टिनेशन एंड यू एंजॉय योर जर्नी दैट वे. That's amazing. Any company in the world right now you can pick out, they're hiring. Even Facebook, if they're unhiring 11,000 people, they're still looking for people who they want to hire in specific fields. So you reach out to anyone and just ask them clearly, what are you guys exactly looking for, and you start training yourself in that field. Guaranteed job है यार. मतलब कोई मतलब सेंस ही नहीं है ना. हम लोगों के पास अभी 200 लोगों की कमी है अपनी कंपनी में, लेकिन सही बंदा मिले तो हम हायर करें. ऐसे तो नहीं है किसी को कर ले. तो अगर if you're approaching Ifra Baji for digital marketing or anyone related to this field, know what you're asking, don't waste their time, and try to get the most value you can out of them with the least time used. So thank you so Yeah. much, Ifra Baji. If You're I am welcome. missing out on anything? I think you have covered pretty much everything. So sorry to keep you up so late. It's very late now. No, और that's. यहाँ धुन भी काफी है तो I'm humbled. Thank you so much, Saad, Nini, for thank you for coming finally. yeah, no, it's a wonderful journey that you were starting in Lahore and actually setting a new example with your work. And this is a wonderful thing. And जितने भी हमारे पास इस वक्त online जो है हमारे students देख रहे होते हैं content को, तो जिस तरह का content वो consume कर रहे हैं उसको replace करना with the content that you guys are producing is awesome. क्योंकि this is the main thing. अगर हम लोग इंडिया की भी बात करें तो इंडिया में भी ये वाले शोज़ जो हैं लाइक लोग इसको एक्नॉलेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं. पाकिस्तान में इस तरह के शोज़ और इस तरह के जितने भी हमारी कंटेंट है ना वो अभी उतना प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा. तो थैंक यू फॉर एक्चुअली प्रोड्यूसिंग एंड स्टेपिंग अप फॉर द एजुकेशन ऑफ masses. This Thank is you awesome. so much. And she's one of the largest cheerleaders I have. So I'm very grateful to her, and she rocks. Everyone, I hope everyone watching this is happy and staying happy. Always have a smile on your face like she has. And again, thank you for coming. Thank you. Thank you. Startups, entrepreneurship, starting your own new business. Join me every week as we dive into stories, topics, and advices from the top founders, innovators, The crazy ones, the misfits, the troublemakers. every Saturday at 4 p.m. I'll see you there.